Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and dear viewers, came with another topic of bleeding disorder, and the topic is thrombotic thrombocytopenic purpura. As in the previous lecture, I have discussed that if you wanna know about a topic, first concentrate on its name, like thrombotic, thrombocytopenic and purpura. Thrombotic means that when there is thrombosis either in deep veins or in arteries or in an organ. So thrombotic basically derives from thrombosis, and because of that thrombosis there is thrombocytopenia occurred, and because of that thrombocytopenia purpura occurred. Now there are two disorders like TTP, thrombotic thrombocytopenic purpura, and hemolytic uremic syndrome. These two disorders are very linked and similar to each other, and these two abnormalities are these two disorders basically cause multi-organ damages, because in these small organs usually thrombosis occur in both disorders. So therefore these two disorders have some certain similarities with each other, but on the basis of certain factors we can differentiate that either it may be TTP or it is hemolytic uremic syndrome. So in both disorder there is microangiopathic hemolytic anemia and thrombocytopenia. Micro means small, angiopathic hemolytic anemia means that hemolysis will occur because of the thrombosis in various veins or arteries or veins. So because of that hemolysis, anemia usually occurs. So we can say that both TTP and hemolytic uremic syndrome are hemolytic anemias, and there is thrombocytopenia. Although some studies appear to distinguish these two entities, the presenting features are essentially the same in most adult patients. जैसे हमने कहा कि इन दो डिसऑर्डर्स में लाइक टीटीपी में और हेमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं. आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या सिमिलरिटीज़ हैं जो कि इन दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन अगेन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये टीटीपी है या हेमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम है. सो अगेन बोथ टीटीपी एंड हेमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम दोनों हेमोलिटिक एनीमिया है और दोनों माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया का एक टाइप है और दोनों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है. नाउ व्हाट इज टीटीपी? थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पurpura वो डिसऑर्डर है जिसमें माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसमें रीनल एबनॉर्मेलिटी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और इसमें फीवर होता है. तो ये 5 फैक्टर्स अगर किसी डिसऑर्डर में हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये टीटीपी है. तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं? नंबर 1 हेमोलिटिक एनीमिया है, उस डिसऑर्डर में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, उसमें रीनल एबनॉर्मेलिटीज हैं, उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं और उन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ फीवर भी इन इंडिविजुअल्स को हैं. तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज classical TTP. Most common symptoms at presentation are non-specific and including abdominal pain, nausea, vomiting and weakness. Although कि ये symptoms में हैं ये, लेकिन इसको हम कहते हैं non-specific symptoms. तो the most important things which we usually want to diagnose in a patient of TTP are these 5 features. थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पurpura में जैसे हमने कहा कि ये 5 फैक्टर्स होने चाहिए जब भी कोई पेशेंट डायग्नोसिस के लिए आता है.
लेकिन now only thrombocytopenia and microangiopathic hemolytic anemia without any other clinical apparent cause is required to suspect TTP and hemolytic uremic syndrome and initiate treatment. Means कि अगर इंडिविजुअल्स में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया ये दोनों फीचर भी हैं तो उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और स्पेशली माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया जो है कि जितने भी वेन्स हैं बॉडी के उनमें थ्रोम्बोसिस हो गई, उन थ्रोम्बोसिस की वजह से फिर डैमेज होता है बॉडी में, मुख्तलिफ आर्गन की फेलियर होती है। तो चूंकि हमने इन इंडिविजुअल्स को आर्गन फेलियर से बचाना है तो इसलिए उसकी ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। आगे हम डिस्कस करेंगे कि टीटीपी और हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के क्या ट्रीटमेंट हैं, तो वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए ताकि इंडिविजुअल्स आर्गन फेलियर में ना जाए। नाउ माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया या हम इसको कहते हैं माहा। तो माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया की अपने कुछ फीचर्स हैं और उनके अंडर बहुत से एनीमियाज आते हैं जिनमें टीटीपी है, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। तो ये सारे के सारे जो एनीमियाज हैं ये माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया के अंडर आते हैं। और माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया या माहा ये नॉन इम्यून हेमोलिटिक एनीमियाज होते हैं जिसमें कॉन्स्टिस नेगेटिव होता है और हेमोलिसिस इनका एक प्रोमिनेंट फीचर होता है। तो उस हेमोलिसिस की वजह से, क्योंकि यूजुअली इसमें इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होती है, तो इसलिए पेरिफेरल सर्कुलेशन में शिस्ट्रोसाइट्स बहुत ज्यादा आते हैं। और शिस्ट्रोसाइट्स क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे और उसके पिक्चर्स भी, इमेजेस भी मैंने इसमें ऐड की हैं। पेरिफेरल सर्कुलेशन में शिस्ट्रोसाइट्स बहुत ज्यादा आते हैं। चूंकि रेड ब्लड सेल्स की हेमोलिसिस होती है तो उन हेमोलिसिस की वजह से इन पेशेंट्स में एलडीएच भी इंक्रीज हो जाते हैं और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इन पेशेंट्स का सीरम में इंक्रीज होता है। तो माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का इंक्रीज होना, एलडीएच का इंक्रीज होना और पेरिफेरल सर्कुलेशन में शिस्ट्रोसाइट का आना और इंडिविजुअल्स का कोम्स नेगेटिव आना, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी माहा के हैं और टीटीपी में ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। नाउ शिस्ट्रोसाइट्स क्या हैं? शिस्ट्रोसाइट्स बेसिकली फ्रेगमेंटेड आरबीसीज हैं। जब भी हमारे जो वेन्स होते हैं इनमें थ्रोम्बोसिस होते हैं तो जब रेड सेल्स इनसे टकराते हैं तो रेड सेल टूट जाते हैं, फ्रेगमेंट्स उसके बन जाते हैं, उन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं शिस्ट्रोसाइट्स। रीनल डिजीज, क्योंकि रीनल्स में भी जो ग्लोमेरुलस हैं बाज़ औक़ात क्लॉटिंग ग्लोमेरुलस में आ जाती हैं तो फिर फिल्ट्रेशन नहीं होती। तो जब फिल्ट्रेशन नहीं होती तो डेफिनेटली जो रीनल प्रॉब्लम्स फिर उस थ्रोम्बोसिस की वजह से आते हैं। क्योंकि किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना, तो जब किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं होगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो रीनल फेलियर पे पेशेंट जा सकता है। तो इसलिए हमने इन पेशेंट्स को रीनल फेलियर से बचाना है और टीटीपी में रीनल फेलियर इज द मोस्ट कॉमन काज बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस। नाउ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जैसे हमने कहा कि इनके कुछ प्रॉपर्टीज है टीटीपी के, जिसमें से एक है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो मुख्तलिफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक उन इंडिविजुअल्स के जो है सिवियर हेडेक उनको होता है या कंफ्यूजन में चले जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं पेशेंट्स। इसी तरह जो कि लेस कॉमन है बट ग्रैंड मेल सीजर्स एंड कोमा कैन अकर, मीन्स कि इंडिविजुअल कोमा में भी जा सकते हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से। आप लोगों ने देखा होगा कि जब क्लॉटिंग होती है और क्लॉटिंग लेट्स सपोज कभी कभार ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है तो सारा का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स कोमा में जा सकते हैं। तो एक है फीवर, इंडिविजुअल्स में फीवर भी का इम्पोर्टेंट है। कार्डिक इन्वॉल्वमेंट भी अगेन उसकी वजह से है कि कार्डिक इन्वॉल्वमेंट जब थ्रोम्बोसिस होती है तो डेफिनेटली इंडिविजुअल्स में कार्डिक प्रॉब्लम्स आते हैं। सिमिलरली कार्डिक प्रॉब्लम्स एक और वजह से भी आ सकते हैं, क्योंकि अनीमिया होता है तो ब्लड का हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। तो जब अनीमिया होगा तो प्रॉपर्ली ब्लड पंप नहीं कर सकता, हार्ट पंप नहीं कर सकता, जिसकी वजह से कार्डिक इन्वॉल्वमेंट भी होती है। और भी काजेस हैं जिसकी वजह से कार्डिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे सडन डेथ भी इनमें हो जाता है कार्डिक इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या शॉक पे भी बंदा जा सकता है, इवन कभी कभार हार्ट फेलियर भी हो जाती है।
Now these are schistocytes. We can see that this is basically fragmented red cells. ये एक इंटेक्ट रेड सेल्स हैं. अगर रेड सेल्स टूट जाते हैं तो फिर इसके ये फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं जिनको हम शिस्टोसाइट्स कहते हैं. इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये भी शिस्टोसाइट्स हैं. अगेन ये शिस्टोसाइट्स, ये सारे के सारे शिस्टोसाइट्स हैं जो कि TTP के पेशेंट्स में मोस्टली कॉमन नजर आते हैं. और फिर इनकी हम परसेंटेज देते हैं. मीन्स कि हम 100 रेड सेल्स काउंट करते हैं, इनमें जितने भी ये शिस्टोसाइट्स होते हैं तो उनकी परसेंटेज हम दे देते हैं. जैसे हम रेटिक काउंट करते हैं कि हमने 100 RBCs काउंट किए और 100 RBCs में जितने रेटिक आते हैं उसकी हम परसेंटेज दे देते हैं. इसी तरह शिस्टोसाइट्स को भी हम फिर परसेंटेज में देते हैं इन पेशेंट्स में, और उनकी ट्रीटमेंट भी फिर इन परसेंटेज के बेस पे होते हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे. Now what is the pathogenesis of thrombotic thrombocytopenic purpura? तो पैथोजेनेसिस thrombotic thrombocytopenia में यूजुअली इसमें एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं ADAMTS13. इन इंडिविजुअल्स में ADAMTS13 की डिफिशियंसी होती है, या इस ADAMTS13 की खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो चूंकि TTP एक एक्वायर्ड डिसऑर्डर है तो ये इम्यून मीडिएटेड भी हो सकता है या नॉन इम्यून मीडिएटेड भी हो सकता है. और इस ADAMT इसका काम है वन वोलिब्रान फैक्टर्स को की क्लीवेज करना. तो ये वन वोलिब्रान फैक्टर यूजुअली जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स हैं, वन वोलिब्रान फैक्टर की सिंथेसिस एंडोथेलियल सेल्स में होती है. शुरू में वन वोलिब्रान मोनोमर्स के फॉर्म में एंडोथेलियल सेल्स में बनते हैं. फिर ये मोनोमर जो है वो कंबाइन होकर ये डायमर्स बनाते हैं. डायमर्स जब ये बन जाते हैं तो फिर मुख्तलिफ डायमर्स आपस में कंबाइन होकर ये पॉलीमर्स बनाते हैं, और ये पॉलीमर्स फिर प्लाज्मा में सीक्रेट आउट होते हैं. तो मुख्तलिफ पॉलीमर्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो अल्ट्रा लार्ज वन वोलिब्रान फैक्टर्स बनाते हैं. लेकिन अल्ट्रा लार्ज वन वोलिब्रान फैक्टर्स ये अगर बॉडी में हो तो ये अल्ट्रा लार्ज वन वोलिब्रान फैक्टर बहुत ज्यादा प्लेटलेट को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि वन वोलिब्रान फैक्टर के लिए प्लेटलेट के सरफेस पे एंटीजेंस हैं और ये वन वोलिब्रान फैक्टर उसके साथ अटैच हो सकते हैं. तो हमारे बॉडी में, हमारे प्लाज्मा में अल्ट्रा लार्ज वन वोलिब्रान फैक्टर्स नहीं बनते. क्यों? क्योंकि इसके लिए एक प्रोटीएज एंजाइम है जिसको हमने कहा ADAMTS13. ये ADAMTS13 इस वन वोलिब्रान को ब्रेकअप करते हैं और इसको मल्टीमर्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन इसके साइज को नहीं बढ़ाने देते, क्योंकि अगर इसका साइज बढ़ गया तो फिर ये प्लेटलेट को आपस में जोड़े रखते हैं. तो हमारे प्लाज्मा में यूजुअली ये पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं मल्टीमर वन वोलिब्रान फैक्टर्स. अगर इस ADAMTS13 की डिफिशियंसी होगी तो बहुत ज्यादा अल्ट्रा लार्ज वन वोलिब्रान फैक्टर्स बनेंगे जो कि प्लेटलेट को आपस में कंबाइन करते हैं और क्लॉटिंग करते हैं, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होती है. तो ADAMT13 की डिफिशियंसी की वजह से उन इंडिविजुअल्स में जो कि TTP के इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें अल्ट्रा लार्ज वन वोलिब्रान फैक्टर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये प्लेटलेट्स के साथ जुड़ जाते हैं. तो इसलिए इंडिविजुअल्स में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया काज हो जाते हैं. तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नंबर 1 अल्ट्रा लार्ज वन वोलिब्रान फैक्टर्स के ज्यादती की वजह से है. चूंकि प्लेटलेट आपस में कंबाइन होते हैं, प्लेटलेट प्लग बनाते हैं, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होती है. तो ये पूरी बॉडी में ये थ्रोम्बोसिस शुरू हो जाती है. तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी कि ये थ्रोम्बोसिस जब किडनीज में जाके वहां पर थ्रोम्बोसिस होती है तो किडनीज को फेलियर में लेके जाती है. तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई. और एक लास्ट प्रॉपर्टी कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो भी इसी थ्रोम्बोसिस की वजह से कि कभी कभार ब्रेन में थ्रोम्बोसिस हो जाती है, क्लॉटिंग आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं. तो यूजुअली thrombotic thrombocytopenic purpura occur because of the deficiency of ADAMTS13 or deficiency of ADAMTS13 is because of either immune mediated or non-immune mediated. So this is basically the pathophysiology of thrombotic thrombocytopenic purpura. Again कि नॉर्मली हमारे बॉडी में प्री प्रो वन वोलिब्रान
फैक्टर जो कि मोनोमर के फॉर्म में एंडोथेलियल सेल्स में बनते हैं, ये मोनोमर आपस में कंबाइन होकर डाइमर्स बनाते हैं। ये डाइमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर्स बनाते हैं और पॉलीमर्स फिर प्लाज्मा में सीक्रेट होते हैं। तो प्लाज्मा में फैक्टर है ADAMTS13 जो कि इसकी क्लीवेज करता है ताकि एक्स्ट्रा लार्ज वन वोलिब्रान ना बनने पाए। तो जब इस ADAM30S की डिफिशियंसी होती है जो कि TTP में होती है, तो ये चूंकि डिफिशियंसी है तो इसलिए इस वन वोलिब्रान फैक्टर्स की क्लीवेज नहीं होती, जिसकी वजह से अल्ट्रा लार्ज वन वोलिब्रान फैक्टर बन जाते हैं। ये अल्ट्रा लार्ज वन वोलिब्रान फैक्टर को प्लेटेट्स के साथ इसको जोड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा प्लेटेट, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होती है और थ्रोम्बोसिस फिर मल्टीपल ऑर्गन्स में जाके थ्रोम्बोसिस की वजह से मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं TTP की पैथोजेनेसिस। Now how we can diagnose a patient with TTP? The primary diagnostic criteria is that there is thrombocytopenia, microangiopathic hemolytic anemia, and the property of microangiopathic hemolytic anemia is that the Coombs test will be negative, there will be fragmentation of red blood cells or schistocytes on the peripheral smear, LDH will be elevated, which is the hallmark of red blood cell destruction, and there is indirect bilirubin will be occurred. ठीक है, तो this is basically primary diagnostic criteria. Presence of above criteria is sufficient to establish presumptive diagnosis and begin treatment. तो अगर ये प्रॉपर्टीज किसी पेशेंट में मौजूद हैं तो ये सस्पेक्टेड पेशेंट है TTP का और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए ताकि पेशेंट ऑर्गन फेलियर में ना जाए। Again, this is the slide of a patient having TTP। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, शिस्टोसाइट्स बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं और इसमें हेमोलिसिस हो रही है, जिसकी एक फीचर ये प्रेजेंस ऑफ NRBC है कि NRBC भी मौजूद है पेरिफेरल स्मीयर में। Again, this is another slide of schistocytes like this one. So all these are schistocytes like this one. So this is schistocytes. This is bone marrow of patients with TTP। कि बोन मेरो में जो मेगाकेरोसाइट है ये मेगाकेरोसाइट्स है जो कि बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। इसकी क्वांटिटी भी बोन मेरो में इंक्रीज हो जाती है क्योंकि पेरिफेरल सर्कुलेशन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और बॉडी को जरूरत है, तो इसलिए मेगाकेरोसाइट की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये भी बोन मेरो का एक स्लाइड है। At present, there are no confirmatory tests for diagnosis of TTP, लेकिन जो हमने 5 फीचर पढ़े क्लिनिकली वो इसकी डायग्नोसिस के लिए सफिशिएंट है। अगर इसके लिए ADAMTS13 टेस्ट हम परफॉर्म करें और उसकी डिफिशियंसी है या उसके खिलाफ इनहिबिटर्स पाए जाते हैं तो दिस इज अनदर diagnostic test for diagnosis of thrombotic thrombocytopenic purpura। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में के कौन कौन से कंडीशन है जो कि TTP से मिलते जुलते हैं, तो एक है डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, सेप्सिस, pre-eclampsia or eclampsia and hemolytic uremic syndrome. So these are the differential diagnosis of thrombotic thrombocytopenic purpura। ट्रीटमेंट में प्लाज्मा एक्सचेंज इज द ओनली ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा कि उस इंडिविजुअल की अगर शिस्टोसाइट काउंट ज्यादा है तो उसके लिए प्लाज्मा एक्सचेंज करें। प्लाज्मा एक्सचेंज के लिए एफेरेसिस मशीन आती है, एफेरेसिस मशीन के जरिए प्लाज्मा एक्सचेंज किए जाते हैं कि उस इंडिविजुअल का प्लाज्मा हम एक्सचेंज करें FFP के साथ। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इन इंडिविजुअल्स को ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं एफेरेसिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा एक्सचेंज। तो FFP ट्रांसफ्यूज के और उसके प्लाज्मा को हम रिप्लेस करते हैं। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि आया पेशेंट्स की जो प्लाज्मा एक्सचेंज है वो ट्रीट हो चुकी है कि नहीं, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ शिस्टोसाइट करते हैं और LDH करते हैं। तो एफेरेसिस करने से पहले हम LDH परफॉर्म कर लेते हैं और पेरिफेरल स्मीयर परफॉर्म कर देते हैं। लेट्स सपोज एक पेशेंट है जिसके पेरिफेरल स्मीयर में 10% शिस्टोसाइट्स आ रहे हैं, तो जब हमने एफेरेसिस की और उसके शिस्टोसाइट्स लेस देन 1% आ रहे तो इट मीन्स कि हमारा एक्सचेंज ठीक हो चुका है।
अगर मोर देन 1% उसके शिस्टोसाइट आ रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारा जो एक्सचेंज है वो ठीक नहीं हुआ। तो प्लाज्मा एक्सचेंज इज द ओनली वन थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा। थैंक यू सो मच। ये थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा के वही क्लिनिकल फीचर्स हैं जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रेड ब्लड सेल फ्रेगमेंटेशन, फीवर, and neurological problem and kidney failure. So these are the 5 clinical features of thrombotic thrombocytopenic purpura. TTP, untreated TTP is deadly. So treatment usually involves replacement the plasma, means plasma exchange. So this is therapeutic therapy of thrombotic thrombocytopenic purpura. और ये फ्रेगमेंटेशन है उसके रेड ब्लड सेल के फ्रेगमेंटेशन है जो कि इसमें आती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। दीज आर द रेफरेंसेस।